Today, Pakistan ready on its toes to join the world in the field of AI. The government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. پاکستان مصنوعی ذہانت کے شعبے میں بھی اپنا سکہ جمانے کو تیار 2030 تک اے آئی میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کی جائے گی اے آئی نصاب وفاق آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے سکولز میں متعارف کرایا جائے گا آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کو 1000 پی ایچ ڈی وظائف دیے جائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں انڈس اے آئی ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب نوجوانوں کو جدید علوم اور مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت قرار We have almost transformed Federal Board of Revenue through digitization, and it's doing a great job. ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن سے محصولات کی وصولی میں شفافیت ممکن ہوئی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے جدید اسکینرز اور آلات بندرگاہوں پر نصب کیے گئے ملک کی معیشت صنعت تجارت اور خواتین کے حقوق میں اے آئی کے ذریعے انقلاب متوقع ہے پاکستان ہر چیلنج کا مقابلہ کر کے عالمی برادری میں اپنا نمایاں مقام پیدا کرے گا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب عالمی شراکت داروں سے مل کر ٹیکنالوجی کے مثبت اثرات کو اپنانے کے عزم کا اعادہ پاکستان مصر اور اردن سمیت 8 ملکوں نے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی خود مختاری کا دعویٰ مسترد کر دیا غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار مغربی کنارے میں اسرائیلی توسیع پسندانہ پالیسیز سے خطے میں تشدد کو ہوا مل رہی ہے فلسطینی علاقوں کا الحاق اور آبادیاتی تبدیلیاں ناقابل قبول ہیں اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کوئی خود مختاری حاصل نہیں وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلان بھارت عالمی ثالثی عدالت میں 9 فروری کی ڈیڈ لائن تک ہائیڈرو پاور ڈیٹا جمع کرانے میں ناکام عالمی ثالثی عدالت ہیگ میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان کا بھارت کے خلاف مقدمے کے دوسرے مرحلے کی سماعت مکمل بھارت کی عدم شرکت عالمی ثالثی عدالت نے بینچ کی سربراہی امریکی پروفیسر شان ڈی مرفی نے کی مقدمے میں پاکستان کی نمائندگی اٹارنی جنرل منصور آوان اور انڈس واٹر کمشنر نے کی بھارت دریائے سندھ جہلم اور شناب پر معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے پاکستان کا موقف عالمی اداروں کی رپورٹس اور ریٹنگز معاشی سمت کی درستگی کا منہ بولتا ثبوت بینکاری کا مجموعی ماحول بتدریج بہتری کی جانب گامزن عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے آؤٹ لک کو مستحکم قرار دیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اظہار اطمینان معاشی ٹیم کی کاوشوں کی پذیرائی 12 سے 18 ماہ کے دوران بینکس کی کارکردگی میں استحکام رہنے کی توقع 2026 کے دوران جی ڈی پی کی شرح نمو 3.5% تک رہنے کا امکان ٹیکنالوجی ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو ہماری تمام پچھلی کوتاہیاں رہ گئی ہیں اس کو آج ہم ٹیکنالوجی سے برج کر سکتے ہیں آج ہر کسی کو شہروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اچھی صحت کے لیے اچھی تعلیم کے لیے everything is actually at your doorstep پاکستان ڈیجیٹل انقلاب کی راہ پر گامزن قومی ڈیجیٹل روڈ میپ تیار نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور اتھارٹی کے ذریعے ڈیٹا سائبر سیکیورٹی اور اے آئی کے لیے گورننس فریم ورک تشکیل پاکستان کی پہلی قومی اے آئی پالیسی ستمبر 2025 میں متعارف 2026 میں عمل درآمد کا آغاز جامعات سٹارٹ اپس اور عالمی کمپنیز میں تعاون کے فروغ اور شفاف ٹیکس نظام میں اے آئی کا کردار نمایاں پاکستان جدت علم اور ترقی کا سفر جاری رکھے گا وفاقی وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد اب ہمیں مارکہ ترقی کے اہداف حاصل کرنے ہیں آئی ٹی پر مبنی مضبوط معیشت قائم کرنی ہے اے آئی آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اے آئی سے متعلق نیشنل ٹاسک فورس قائم کی گئی ٹاسک فورس نے پہلی قومی اے آئی پالیسی کے اجرا میں اہم کردار ادا کیا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال
सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर अली शेख तख्तियोफ की मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। उज़्बेक सफ़ीर ने नवाज शरीफ को उज़्बेकिस्तान के सदर शफकत मिर्ज़ी योयेफ का ख़त पहुँचाया। उज़्बेक सदर ने अपने ख़त में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अवामी फलाही मंसूबों को सराहा। मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत दी। क्या अफगानिस्तान को नहीं पता, उनकी जो हुकूमत है उनको नहीं पता, या वो इसमें मुलव्वस हैं, पुष्पनाई हैं और हिंदुस्तान के बिहाफ के ऊपर ये एक नई जंग जो है हमारे साथ जो है लड़ी जा रही है। जब हिंदुस्तान जो है वो मुकाबला सामने आके नहीं कर सकता तो वो अफगानिस्तान के पल्लू में छुप के हम पे वार कर रहा है। मई की जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जंग की जुर्रत नहीं कर सकता। भारत अफगानिस्तान के पीछे छुपकर हम पर वार कर रहा है। सबको इत्तेफाक करना होगा कि दहशतगर्दों के हमलों का मजहब और फिरकावारियत से कोई ताल्लुक नहीं। बातचीत के लिए 2 बार अफगानिस्तान का दौरा किया, हमारी सारी बातें तस्लीम की गई, गारंटी देने के लिए कोई तैयार न था। कई दिहाइयों तक अफगान बाशिंदों को पनाह दी, उन्हें इसका भी एहसास नहीं। मुल्क दुश्मन अनासर के मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह बैनुल वज़ारती इजलास। यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान के मुआशी और तिजारती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का जायजा। GSP प्लस फ्रेमवर्क के तहत तिजारती रवाबित में वसअत और आलमी जिम्मेदारियां पूरी करने पर जोर। पाकिस्तान ने अब तक GSP प्लस के 4 2 साला जायजे कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का अहम इक्तसादी शराकतदार है। नायब वज़ीर आज़म। पंजाब का बहुत रिच कल्चर है और मैं खुश हूँ कि पंजाबियों ने उसको न सिर्फ मनाया बल्कि उसको सेलिब्रेट किया, उसको उसके अंदर स्पेशली जेन ज़ी ने जो प्राइड ली उसके अंदर, जिस तरह वो अपने कल्चर से जुड़ गए हैं। मैं शाबाश देना चाहती हूँ पूरी हुकूमत पंजाब को, 15 डिपार्टमेंट्स को, जिन्होंने इस बसंत को होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इन्होंने एक सेफ बसंत के तौर पे इन्होंने अरेंज किया। बसंत की बहाली से सकाफत बहाल हुई। SOPs पर अमल दरामद से अवाम ने त्यौहार को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। नौजवान नस्ल ने पहली बार खुली फजा में बसंत को बेहतरीन तरीके से मनाया। मीडिया ने बसंत कामयाब बनाने और मुल्की मुस्बत तशख्खुस उजागर करने में अहम किरदार अदा किया। तरलाई धमाके के मुतासरीन के साथ है, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। धमाके के बाद सरकारी सतह पर तकरीबात मनसूख कर दी थी। अवाम ने इंतशारी और फसादी टोले की हड़ताल को मुकम्मल नाकाम बना दिया। पंजाब में किसी भी जगह हड़ताल नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा के वफ़द की हमरा मुलाकात। सेहत, तालीम, अपना घर, सुथरा पंजाब और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के सदर ने पंजाब में जारी टूरिज्म, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट मंसूबों को सराहा। मुस्तकबिल में मौसमियाती तब्दीली, डिजिटल गवर्नेंस और जामे तरक्की के लिए सपोर्ट और सरमायाकारी की यकीन दहानी। पंजाब वर्ल्ड बैंक के साथ माली इस्तेहकाम और काबिल अमल कारोबारी मॉडल्स के साथ मुसलसल ताउन का ख्वाहां है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार रसनायके के माबैन टेलीफोन पर राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम। श्रीलंकन सदर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को श्रीलंका में मुनक़िदा पाक भारत मैच खेलना चाहिए। श्रीलंकन सदर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की है, श्रीलंका में दहशत गर्दी के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया।
پاکستان نے سری لنکا کے ساتھ اپنے درینہ تعلقات کو ہر چیز پر فوقیت دی اور پاکستانی کرکٹ ٹیم نے دہشت گردی کے باوجود سری لنکا میں کرکٹ کھیلنے کے لیے دورے جاری رکھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سری لنکا کے صدر انورا کمار ڈسنائکے کے ان جذبات کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں بھی مشکل ادوار میں سری لنکا نے بھرپور ساتھ دیا، پاکستان میں کرکٹ جاری رکھی۔ حال ہی میں سری لنکن ٹیم نے پاکستان کا دورہ منسوخ نہ کر کے پاکستانی قوم اور کرکٹ شائقین کے لیے ایک ناقابل فراموش اقدام اٹھایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سری لنکن صدر کو T20 ورلڈ کپ کے پاک بھارت میچ کے حوالے سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلے سے آگاہ کرنے کا کہا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، عطاء اللہ طاہر اور شہزاد فاطمہ خواجہ کا سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں انڈس AI ایکسپو کا دورہ۔ وفاقی وزراء نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا، مصنوعی ذہانت کے عملی مظاہروں کو بے حد سراہا۔ حکومت AI سمیت مختلف شعبوں میں ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ، نوجوانوں کے ٹیکنالوجی منصوبے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر، مصنوعی ذہانت جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں تحقیق اور ترقی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال، انڈس AI ایکسپو 7 روز تک جاری رہے گی۔ معاشی نظام میں شفافیت کے لیے ڈیجیٹائزیشن پر عمل پیرا ہے۔ حکومتی کوششوں سے معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ اخراجات میں نمایاں کمی لائی گئی، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے۔ ٹیکس چوری کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے۔ قومی آمدن میں اضافے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سعودی عرب میں العلا کانفرنس سے خطاب۔ موجودہ حکومت شفافیت اور جواب دہی کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا۔ شہری اب گھر بیٹھے موبائل فون کے ذریعے اپنے مسائل حل کر سکیں گے۔ جدید ٹیکنالوجی سے نوجوانوں کو گھر بیٹھے بین الاقوامی روزگار ملے گا۔ ملکی معاشی سرگرمیوں کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے قابل بنانا ناگزیر ہے۔ اصلاحات کا مقصد عام آدمی کی زندگی میں آسانی لانا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا اصلاحاتی ایجنڈے کی تقریب سے خطاب۔ علماء اکرام کی اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت اور اتحاد بین المسلمین پر زور۔ حکومت اور افواج پاکستان پر اعتماد کا اظہار۔ علماء اور مشائخ کی بھائی چارے کے فروغ کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر سردار محمد یوسف کی زیر صدارت علماء و مشائخ کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ مقصد بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کو فروغ دینا تھا۔ اس وقت تک ثبوت انٹیلیجنس کے اداروں کو، لا انفورسنگ ایجنسیز کو اس وقت تک حاصل ہوئے ہیں، اس میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ یہ تمام ٹریننگ اور تمام تربیت جو ہے افغانستان سے دہشت گرد نے لی ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ہے جو اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی یہ کارروائیاں ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہے وہاں پہ اور اس کے ساتھ ہمارا جو بلوچستان ہے وہاں پہ کی جا رہی ہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ ترلائے ماسر میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکہ ہوا۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ IG اسلام آباد کے عزیز بھی دھماکے میں شہید ہوئے۔ تحقیقاتی اداروں نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے۔ خودکش بمبار کے سہولت کاروں کو چند گھنٹوں میں گرفتار کیا گیا۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ پاکستان کے شہری، پاکستان کی عوام، پاکستان کی فوج، پاکستان کی پولیس، ہم سب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اکٹھے ہیں۔ ہم اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کے بیک پہ کھڑے ہیں اور مل کر انشاءاللہ تعالی ہم اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ دشمن کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ دہشت گردی کے خلاف قوم متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ترلائی دھماکے کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔
धमाके के मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। 9 फरवरी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु का यौम शहादत। भारत ने बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में मोहम्मद अफजल गुरु को झूठे इल्जाम में फांसी देकर इंसाफ का कत्ल किया। भारतीय जबर के बावजूद मजलूम कश्मीरी आवाम का अज़्म मजीद पुख्ता, हक़ के खुद इरादियत ही आज़ादी का वाहिद रास्ता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 11 फरवरी को मुकम्मल हड़ताल की अपील। शोहदा की कुर्बानियाँ तहरीक आज़ादी का बेशकीमत असासा हैं। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। किश्तवाड़ में भारतीय फौज की अंधाधुंध फायरिंग, मकामी लोगों में खौफ व हिरास। नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसीज के बायस भारतीय किसान सरापा एहतजाज। भारत अमरीका तिजारती माहदे पर किसान एहतजाज करने पर मजबूर। गैर मुनसिफाना और यकतरफा तिजारती डील पर किसानों का गम और गुस्से का इजहार। भारतीय किसान और डेयरी सेक्टर मुतासिर होने का खदशा। किसान यूनियंस का भारतीय वजीर तिजारत से इस्तीफे का भी मुतालिबा। खारजा मुहाज पर नाकामी और दाखिली बेइंतजामी नाअहल मोदी हुकूमत की पहचान बनती जा रही है। झूठ और धोखे पर मबनी भारत की खारजा पॉलिसी जमीन बोस। मफाद परस्त मोदी हुकूमत का चाबहार से पिसपाई के बाद बड़ा यूटर्न। ईरान के 3 तेल बरदार जहाज भी जब्त कर लिए। भारत का सिफारती दोगलापन फिर बेनकाब। ईरान के खिलाफ इकदाम भारत की मुतजाद खारजा पॉलिसी और अमरीकी दबाव के आगे झुकाव का वाज़ेह सबूत है। ईरानी जहाज़ों की जब्ती पर आलमी माहिरीन की कड़ी तनकीद। अफगान तालिबान रजीम का नया जाबिराना फौजदारी ज़ाब्ता मुतारिफ। कानून की आड़ में आमरीत और खौफ का मुनज़्ज़म निज़ाम नाफिज। यूरेशिया के मुताबिक नए ज़ाब्ते के तहत मजहबी और सियासी इख्तलाफ को जुर्म करार दे दिया गया। ख़वातीन की खुद मुख्तारी महदूद, घरेलू तशद्दुद को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जायज़ करार दे दिया गया। तबकाती इंसाफ को बाज़ाब्ता हैसियत हासिल कर दी गई। नया फौजदारी ज़ाब्ता जबर से इक़्तिदार को मजबूत करने की कोशिश है। जापान में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात। पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म सनाए तकायची का हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से कामयाब। हुक्मरान इत्तेहाद ने पार्लिमान की 465 में से 323 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। कामयाबी के बाद सनाए तकायची के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात रोशन। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जापान के ऐवान-ए-ज़ेरीन के इंतखाबात में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म सनाए तकायची को दिली मुबारकबाद। जापान की आवाम की जानिब से सौंपी गई जिम्मेदारियां कामयाबी से पूरी करने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। Two, one, पाकिस्तान सुपर लीग में नई तारीख रकम। वली टेक्नोलॉजीज ने PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के मालिकाना हुकूक 2 अरब 45 करोड़ रुपए में हासिल कर लिए। मालिकान ने फ्रेंचाइज का नाम तब्दील करके रावलपिंडी रख दिया। रावलपिंडी PSL की तारीख की सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू हमने नहीं जाने देना था और हमारे भाई भी हैं और उनके साथ जो भी था आपके सामने था सारी सिचुएशन। जो धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? पहली बात, ना मैं धमकी से डरता हूँ ना गवर्नमेंट डरती है और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। जब मेहनत की जाए तो अच्छा नतीजा सामने आता है। बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी यहां आ रहे हैं। बांग्लादेश के हवाले से ICC के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। धमकियों में आने वाले नहीं। हमने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। बहुत सारे ममालिक ने हमसे रब्ता किया। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का भारत से मैच न खेलने का मामला, भारी माली नुकसान देकर आईसीसी की दौड़ें लग गई। पाकिस्तान को मनाने की सर तोड़ कोशिशें। लाहौर में आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इजलास। पीसीबी को एक मरतबा फिर बांग्लादेश की भरपूर हिमायत। मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर, जल्द पेशरफ्त का इम्कान। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आलमी क्रिकेट पर भारत की बारादस्ती की कोशिश बेनकाब कर दी। T20 वर्ल्ड कप भारतीय सियासी मुदाखलत के बायस तनाज़े का शिकार। आईसीसी पर भारतीय दबाव के तहत फैसले करने के इल्जामात। भारत की हठधर्मी के बायस पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज मैच गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाइकआउट ने वर्ल्ड कप की साख पर सवालात उठा दिए। भारतीय इजारादारी आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए खतरनाक है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना दूसरा मैच कल अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। कोलंबो में शेड्यूल मुकाबला शाम 6:30 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ग्रीन शर्ट्स की कोलंबो में प्रैक्टिस। पहले मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील भी शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुकी है और पाकिस्तान इस हकीकत के लिए तैयार है, सीखने के लिए और अपनाने के लिए। और इसको अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान में पहली मर्तबा मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ला रहा है इंडस AI वीक 2026। 40 से ज्यादा एक्टिविटीज जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए अपना करियर बनाने या अपनी महारत दुनिया के सामने लाने का बेहतरीन मौका है, जहां तलबा, रिसर्चर्स, बिजनेस स्टार्टअप्स, टेक इंडस्ट्री, तालीमी इदारे और हर नया टैलेंट AI को सिर्फ समझेगा नहीं बल्कि इसे अमल में लाएगा। जहां पाकिस्तान अपनी पहली मुकामी AI शनाख्त को भी मुतारिफ करवा रहा है। लैला, एक लोकल AI लैंग्वेज एवाटार, इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पूरे पाकिस्तान में 9 फरवरी 2026 को AI इंडस वीक का आगाज होने जा रहा है, जो जारी रहेगा 15 फरवरी तक। ये टेक्नोलॉजी का इवेंट नहीं, ये बाज़ाब्ता ऐलान है कि हम हैं AI नेशन पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नौजवानों को मस्नूई ज़हानत की तरबियत देकर ज़राअत, सनत, तिजारत समेत हर शोबे में इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। इस हवाले से AI के शोबे में $1 अरब खर्च किए जाएंगे। मज़ीद तफसील क्या है बताएंगे आगा मसूद खालिद। इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मसनूई जहानत के शोबे में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार है। दोस्त मुमालिक समेत आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी के मस्बत असरात को अपनाने के लिए पुरअज़्म है। Today, Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. I am pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. AI curriculum will be introduced not only in all federally controlled or run schools, but also all schools of AJK and
Gilgit-Baltistan as well as remote parts of Balochistan. We'll provide 1,000 fully funded PhD scholarships in AI. We will launch a nationwide program to train 1 million non-IT professionals in AI skills, enabling them to enhance productivity and improving livelihoods. वजीर आजम ने हुकूमत की हालिया कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मुकम्मल डिजिटाइजेशन, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद स्कैनर्स और आलात की तनसीब, टैक्स की बचत और महसूलात की वसूली में शफाफियत और नौजवानों की ज़राअत, तिजारत और दीगर इक्तसादी शोबों में तरबियत की फ्राहमी काबिल सताइश इक़दामात हैं। We have almost transformed Federal Board of Revenue through digitization, and it's doing a great job. We have controlled smuggling in Pakistan through various most modern initiatives. We are recovering lost sums of monies, tax evaded through collusion, again through these platforms. And we are offering quality training to our young boys and girls. वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है और तरक्की और खुशहाली की मंजिल की जानिब गामजन है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत आईटी के शोबे में नौजवानों को अहद हाज़िर के तकाज़ों से लैस करने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद फैसल राव की रिपोर्ट देखिए। इंडस एआई वीक का बुनियादी मकसद पॉलिसी में जिद्दत, टैलेंट की तरक्की और सरमायाकारी को वन नेशन प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। इवेंट के जरिए हुकूमत, सनती शोबे और एकेडमिया को एक मुश्तरका एआई रोड मैप के तहत मुत्तहिद करने और पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक उभरते हुए एआई हब के तौर पर मुतारिफ कराना है। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल ने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए पॉलिसी का तसलसल बेहद ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान विजन के तहत एआई मुल्क को मुआशी तरक्की की नई मनाजिल तक ले जाने में मावन साबित होगी। Pakistan began assembling an ecosystem where data algorithms, compute capacity and skilled human capital could converge under a national framework. Its mandate was clear: to move Pakistan from fragmented initiatives to a coherent national AI framework aligned with development priorities. वफाकी वजीर आईटी शिदा फातिमा ख्वाजा ने एआई डिक्लेरेशन के अहम खदोखाल बयान किए। डिक्लेरेशन में जिम्मेदाराना एआई का इस्तेमाल, शमूलियती तरक्की, टैलेंट डेवलपमेंट और आलमी ताउन पर जोर दिया गया। शिदा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि एक साल की मुद्दत में एआई के शोबे में नुमाया पेशरफ सामने आई है। This is the new turning point where the world is witnessing a rapid change in the shape of emerging technologies. And once again, we, the people of this land, the people of Pakistan, the people of the Indus Valley civilization are ready to embrace this change. Our goal is clear. We aim to shape AI in a way that it aligns with our priorities, that it reflects our values and our aspirations. तकरीब में शरीक माहिरीन, सरमायाकारों और नौजवानों ने इंडस एआई वीक को पाकिस्तान की अवाम और मुईशत के लिए नहायत अहम करार दिया। Gathering here, people from all over the world will contribute to the improvement of the digitalization in industry, in defense industry as well. That's why I think that this is one of the biggest event and the most important event in the world. This is the first time इतना grand level पे एक AI export technology event हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये एक तहिया है, एक इरादा है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ना नहीं है, बल्कि इसको अपना एक साथी बनाना है, अपना दोस्त बनाना है। स्कूलों और कॉलेजों के बच्चों को अपने साथ लेके चलना है। In this event, we were able to witness how AI sphere in Pakistan is very rapidly developing. This event is going to show the awareness कि हमारा पाकिस्तान यहाँ में कितना ऊपर जा रहा है और चला गया है।
AI इंसानी जहानत का मुतबादिल नहीं बल्कि तरक्की का एक मौसर जरिया है। इंडस AI वीक इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान न सिर्फ डिजिटल तब्दीली के लिए तैयार है बल्कि मसनूई जहानत के मैदान में आलमी दौड़ का हिस्सा बन चुका है। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ख्वाब नहीं हकीकत बन चुकी है और पाकिस्तान इस हकीकत के लिए तैयार है, सीखने के लिए और अपनाने के लिए, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान में पहली मर्तबा मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम ला रहा है इंडस AI वीक 2026। 40 से ज्यादा एक्टिविटीज जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए अपना करियर बनाने या अपनी महारत दुनिया के सामने लाने का बेहतरीन मौका है, जहां तलबा, रिसर्चर्स, बिजनेस स्टार्टअप्स, टेक इंडस्ट्री, तालीमी इदारे और हर नया टैलेंट AI को सिर्फ समझेगा नहीं बल्कि इसे अमल में लाएगा, जहां पाकिस्तान अपनी पहली मुकामी AI शनाख्त को भी मुतारिफ करवा रहा है। लैला, एक लोकल AI लैंग्वेज एवाटार, इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पूरे पाकिस्तान में 9 फरवरी 2026 को AI इंडस वीक का आगाज होने जा रहा है, जो जारी रहेगा 15 फरवरी तक। ये टेक्नोलॉजी का इवेंट नहीं, ये बाज़ाब्ता ऐलान है कि हम हैं AI नेशन पाकिस्तान। Indus AI Week, future in the making. दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पठार और वस्ती पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई पहाड़ी इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा। तमाम शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश कोयटा 6 और दालबंदीन में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -9, अस्तोर -7, कालाम -5, गोपिस, मालम जबा और स्कर्दू में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 5, लाहौर 12, कराची 15, पेशावर 7, कोयटा 2, मुल्तान 10, गिलगित 6, स्कर्दू में -3, मुजफ्फराबाद में 6 और श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत रहा 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं, रुक करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम आपका। खबरों को आगे लेकर चलते हैं। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान के बैंकारी शोबे के लिए अपना आउटलुक मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आ रही है। आइंदा 12 से 18 माह के दौरान बैंक्स की कारकर्दगी मुस्तहकम रहने की तवक्को है। मूडीज़ ने 2026 में पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार 3.5% रहने का इम्कान जाहिर किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान के बैंकिंग शोबे की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिए जाने पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए माशी टीम की काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम से तरक्की की राह पर गामज़न है। बैनुल-अक़वामी इदारों की रिपोर्ट्स और रेटिंग्स पाकिस्तान की माशी दुरुस्त समत होने का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक ने गजा में इसराइल की जानिब से नाजायज़ खुद मुख्तारी मुस्तरद करने, गैर कानूनी बस्तियों की तोसी, फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के गैर कानूनी इल्हाक से मुतल्लिक़ इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। मुश्तरका बयान में पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा ने इसराइल के गैर कानूनी फ़ैसले और पॉलिसीज़ को मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल करार दिया है। मुश्तरका एलामिये में बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया गया है कि वो अपनी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी करे और इसराइल को मकबूजा मगरबी किनारे में कशीदगी, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और गैर कानूनी इक़दामात बंद करने पर मजबूर करे।
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is my distinct honor and privilege speaking at this August event tonight. Sri Lanka means a great deal to Pakistan and the people of Pakistan. Pakistan and Sri Lanka have a friendship which is time-tested, and both countries have been there for each other through thick and thin. I can recall the difficult times when Sri Lanka was facing the menace of terrorism, and their resilience and determination, they overcame that menace, and now you can see a peaceful Sri Lanka, a beautiful Sri Lanka, which is a great destination for tourism. And during the cricket series recently, I was speaking to His Excellency, and I told him that I am also a self-appointed tourism ambassador of Sri Lanka, having climbed the Sigiriya Rock, having experienced the golden sandy beaches of Hikkadua, having climbed the wall of the Galle Fort, and having seen the beautiful tea plantations of Kandy. I think Sri Lanka is the destination, the best destination in the region for tourism, and people should definitely visit. With regard to the Independence Day, I would like to extend felicitations on behalf of the Prime Minister of Pakistan, on behalf of the government of Pakistan, and especially on behalf of the people of Pakistan on this joyous occasion. I've had the privilege of calling upon the Honorable President Anura Kumara Dissanayake twice, once on the sidelines of UNGA in New York, and the second time in Dubai. And he came across as someone who's very enthusiastic, very patriotic, and as a president who really loves his cricket. And I also recall the fond memories and the joy that cricket has brought to this region. And in March of 1996, as a young schoolboy, I was one of the spectators in Qaddafi Stadium, Lahore, when Arjuna Ranatunga lifted the World Cup and Sri Lanka won its first World Cup in cricketing history. Your Excellency, Pakistan and Sri Lanka have enjoyed cordial relations since decades. And as you mentioned, the recent cyclone Ditwa, in which Pakistan could play a humble role and contribute towards relief and rescue operations, we are proud to have helped our Sri Lankan brethren. Both countries have enjoyed excellent economic relations. Sri Lanka was the first country to sign a free trade agreement with Pakistan in August 2002, which became operational from 2005. Recently, both countries have held their 13th Joint Economic Commission and 8th Secretary Commerce level talks in Colombo. This will further solidify the relations between two countries. Pakistan has been a proud partner of Sri Lankan armed forces in enhancing their capacity through allocation of a large number of slots in the training institutions on gratis basis. Many senior officers in the Sri Lankan armed forces have attended trainings in Pakistan, and we have also helped the Sri Lankan brethren to deal with the challenge of LTTE insurgency back in the days. Ladies and gentlemen, I have no doubt that our relations will grow from strength to strength in the times to come. I once again congratulate the government and the people of Sri Lanka on their Independence Day with a hope and prayer that Sri Lanka may grow economically and tourism may boom further. And I would also request Sardar Yasir Ilyas Khan, he's the focal person and the coordinator of the Prime Minister for Tourism, to explore avenues of cooperation in the field of tourism, because seeing is believing. And I still reminisce the gig nights in the old Dutch hospital in Colombo and the Ministry of Crab, which is one of the most famous restaurants one can find in Colombo. So, having witnessed
the hospitality, the graciousness, and the beauty of Sri Lanka. I feel fortunate to have been at this ceremony today, and Your Excellency, I assure you on behalf of my government that the people of Pakistan will always stand by the people of Sri Lanka, and the way we have worked out cricket diplomacy and in the recent months, the way Sri Lanka helped promote Pakistan cricket, we shall always remain grateful and indebted to you. Ayubovan, and a very good evening to you. Pakistan, Sri Lanka, Dosti Zindabad. Thank you very much. वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ श्रीलंका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। आज की तकरीब में शिरकत मेरे लिए एजाज़ की बात है। नाज़रीन, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि हालिया शिकस्त के बाद भारत पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जंग की जुर्रत नहीं कर सकता, वो अफगानिस्तान के पीछे छुपकर वार कर रहा है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हमें इस अमर पर इत्तेफाक करना होगा कि इन हमलों का मजहब और फ़िरका वारियत से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान का सहारा लेकर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। क्या अफगानिस्तान को नहीं पता, उनकी जो हुकूमत है उनको नहीं पता, या वो इसमें मुलव्वस हैं, पुष्टपनाही हैं और हिंदुस्तान के बिहाफ के ऊपर ये एक नई जंग जो है हमारे साथ जो है लड़ी जा रही है। जब हिंदुस्तान जो है वो मुकाबला सामने आके नहीं कर सकता तो वो अफगानिस्तान के पल्लू में छुप के हम पे वार कर रहा है। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में मस्जिद में खुदकुश हमला करने वाले दहशतगर्द और उसके साथियों ने अफगानिस्तान में तरबियत हासिल की और इस हमले के पीछे भी भारत का हाथ है। इस वक्त तक सबूत इंटेलिजेंस के इदारों को, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इस वक्त तक हासिल हुए हैं, उसमें ये बात साबित शुदा है कि ये तमाम ट्रेनिंग और तमाम तरबियत जो है अफगानिस्तान से दहशतगर्द ने ली है और उसके पीछे जो है वो इंडिया है जो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे और उसके साथ हमारा जो बलूचिस्तान है वहाँ पे की जा रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि ईवान इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की भरपूर मजम्मत करता है। कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके दहशतगर्दी के हवाले से बहस हुई। आम बहस में हिस्सा लेते हुए अरकान ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की भरपूर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए तमाम हदें अबूर कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात तशवीशनाक हैं। दहशतगर्दों से नबरदाश्त होने के लिए बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत है। इस मामले पर हमें अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर यकज़बान होने की ज़रूरत है। सेनेट इजलास में तरलाई मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान होने वाले खुदकुश धमाके के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई। तफसील बता रही हैं सदफ अफसर। सेनेट में इस्लामाबाद में होने वाले दहशतगर्दी के हालिया वाक़े की मज़म्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। ऐवान ने वाक़े की फौरी तहकीकात और जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा भी किया। करारदाद में 4 हफ्तों में शफाफ तहकीकात मुकम्मल करने की तजवीज़ पेश की गई। करारदाद सैयद वकार मेहदी ने पेश की। इजलास कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सिदाल खान नासिर की सदारत में शुरू हुआ तो एजेंडे की कार्रवाई मुअत्तल करके इस्लामाबाद में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े पर बहस का आगाज किया गया। तरलाई मस्जिद में हमले की भरपूर मजम्मत करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दी एक बहुत बड़ी जंग है। सिक्योरिटी इदारों के नौजवान दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि अपोजिशन संजीदा और काबिल अमल तजावीज दे, हमें एक कौम बनकर सोचना होगा। कानून और इंसाफ के वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हमारा मुल्क हालत जंग में है और हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अमन और अमान को बरकरार रखना वफाक के साथ साथ सूबों की जिम्मेदारी भी है। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हालिया वाक़ये के फौरी बाद हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की। रियासत अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। उनका कहना था कि वाक़ये का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है जिसका ताल्लुक हमसाया मुल्क से है। शहरी रहमान ने कहा कि दहशतगर्द हमले किसी तौर पर कबूल नहीं। सियासत को पीछे छोड़कर पूरी कौम को मिलकर इस नासूर के खात्मे के लिए यकजहती का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे
खात्मे के लिए अब अमली इकदामात करना होंगे। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ राजा नासिर अब्बास ने बहस का आगाज करते हुए वाक़े की भरपूर मजम्मत की और कहा कि मुल्क में नफरतें और इंतशार फैलाने वालों का मुकाबला करना होगा। ऐवान में सेनेटर परवेज रशीद, आबिद शेर अली समेत दूसरे अरकान ने इजहार ख्याल करते हुए तरलाई मस्जिद में हालिया दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सेनेट इजलास में खुदकुश हमले में शहीद होने वालों के लिए दुआ की गई। इजलास मंगल की शाम 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ख्वाब नहीं हकीकत बन चुकी है और पाकिस्तान इस हकीकत के लिए तैयार है, सीखने के लिए और अपनाने के लिए, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान में पहली मर्तबा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है इंडस एआई वीक 2026। 40 से ज्यादा एक्टिविटीज जहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए अपना करियर बनाने या अपनी महारत दुनिया के सामने लाने का बेहतरीन मौका है, जहां तलबा, रिसर्चर्स, बिजनेस स्टार्टअप्स, टेक इंडस्ट्री, तालीमी इदारे और हर नया टैलेंट एआई को सिर्फ समझेगा नहीं बल्कि इसे अमल में लाएगा, जहां पाकिस्तान अपनी पहली मुकामी एआई शनाख्त को भी मुतारिफ करवा रहा है। लैला, एक लोकल एआई लैंग्वेज एवाटार, इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और पूरे पाकिस्तान में 9 फरवरी 2026 को एआई इंडस वीक का आगाज होने जा रहा है, जो जारी रहेगा 15 फरवरी तक। ये टेक्नोलॉजी का इवेंट नहीं, ये बाज़ाब्ता ऐलान है कि हम हैं एआई नेशन पाकिस्तान। Indus AI Week, future in the making. दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान का स्टांस और आईसीसी के मुज़ाकरात। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली की दरख्वास्त की जा रही है। और अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट यह है कि बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से मौक़िफ़ में किसी हद तक नरमी की दरख्वास्त की है और ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मैच खेलना चाहिए। ये दरख्वास्त आई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। ज़ीशान कयूम हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ज़ीशान, बताइएगा ये कितनी अहम डेवलपमेंट है? एक बहुत ही अहम पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले इनकार किया था भारत से मैच खेलने के बाद, तो उसके बाद एक आईसीसी जो था और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा बेचैन थे, लेकिन अब पेशरफ्त हुई है काफ़ी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खुद जो है वो पाकिस्तान को भारत के साथ टी20 वर्ल्ड कप का मैच खेलने की दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर जो थे वो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान आए हुए थे और इसके साथ आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा भी जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद थे और काफ़ी लंबी एक 5 घंटे तक की मीटिंग रही। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर वतन वापस रवाना हुए और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है और एक एलामिया जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि वो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो भारत के साथ 15 फरवरी का जो मैच है वो खेल लें। और इसके अलावा जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम है, उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें बहुत ही मिसाली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया है और हम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और पाकिस्तान की कोशिशों से हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत की है और हम दरख्वास्त करते हैं पाकिस्तान से कि वो 15 फरवरी को भारत के खिलाफ जो टी20 वर्ल्ड कप का मैच है वो खेल लें। बहुत शुक्रिया ज़ीशान कयूम, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात और पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती करते हुए आईसीसी के सामने ये मौक़िफ़ रखा था। अब बांग्लादेश की जानिब से ये मुतालबा किया गया है, दरख्वास्त किया गया है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को होने वाला भारत के खिलाफ मैच खेले। और जनाब, स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए आपको लिए चलेंगे साथी एंकर की जानिब समी इकबाल।
بہت شکریہ نازیہ آپ کا. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا جو سٹانس ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اب انتظار کریں گے کہ حکومت پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے. اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا. ناظرین کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان سپر لیگ میں نئی تاریخ رقم ہو گئی. ولی ٹیکنالوجیز نے پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان سلطانز کے مالکانہ حقوق 2 ارب 45 کروڑ روپے میں حاصل کر لیے. اونرز نے فرنچائز کا نام تبدیل کر کے راولپنڈی رکھ دیا. راولپنڈی پی ایس ایل کی تاریخ کی سب سے مہنگی فرنچائز بن گئی ہے. لاہور میں ملتان سلطانز کی نیلامی کی تقریب ہوئی جس میں فرنچائز کے مالکانہ حقوق کے لیے 5 بیڈرز کے درمیان سخت مقابلہ ہوا. ملتان سلطانز کی بنیادی قیمت 182 کروڑ روپے رکھی گئی جس کے بعد بولی کا عمل شروع ہوا. دلچسپ اور سنسنی خیز نیلامی میں پارٹیوں کی جانب سے بولیاں لگائی گئیں. آخر میں ولی ٹیکنالوجیز نے 2 ارب 45 کروڑ روپے کی سب سے بڑی بولی لگا کر مالکانہ حقوق حاصل کر لیے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اونرز کو ٹیم کی چابی دی. اس سے قبل سیالکوٹ سٹیلینز کی ٹیم 185 کروڑ روپے میں فروخت ہوئی تھی جبکہ حیدرآباد کی ٹیم کو 175 کروڑ روپے میں خریدا گیا تھا. پاکستان سپر لیگ کا 11واں ایڈیشن 26 مارچ سے 3 مئی تک منعقد ہوگا. ایونٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جب محنت کی جائے تو اچھا نتیجہ سامنے آتا ہے. بنگلہ دیش کے حوالے سے آئی سی سی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں. ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے. بنگلہ دیش کا پوائنٹ آف ویو ہم نے نہیں جانے دینا تھا اور ہمارے بھائی بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی تھا آپ کے سامنے تھا ساری سچویشن. جو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ شاید پاکستان پر پابندی لگے گی یا پاکستان کو بھاری جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس حوالے سے بھی کوئی سچ ہے یا صرف یہ خبریں ہی ہیں؟ پہلی بات, نہ میں دھمکی سے ڈرتا ہوں نہ گورنمنٹ ڈرتی ہے اور آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کا, تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا دوسرا میچ کل امریکہ کے خلاف کھیلے گی. کولمبو میں شیڈول مقابلہ شام 6:30 بجے شروع ہوگا اور پی ڈی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا. گرین شرٹس نے کولمبو کرکٹ کلب میں پریکٹس کی. کھلاڑیوں نے کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں کی اور فیلڈنگ ڈرلز میں بھی حصہ لیا. میگا ایونٹ کے پہلے میچ میں پاکستان نے نیدرلینڈز کو 3 وکٹوں سے ہرا دیا تھا. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا بھارت سے میچ نہ کھیلنے کا معاملہ بھاری مالی نقصان دے کر آئی سی سی پریشان ہو گیا. پاکستان کو منانے کی سر توڑ کوششیں جاری ہیں. T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے بھارت کے ساتھ میچ کے بائیکاٹ کے معاملے پر بات چیت کے لیے آئی سی سی کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ لاہور پہنچے. قذافی اسٹیڈیم میں آئی سی سی, پی سی بی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان اہم اجلاس ہوا. 5 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہنے والے مذاکرات میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک مرتبہ پھر بنگلہ دیش کی بھرپور حمایت کی. اجلاس میں مختلف تجاویز کا تبادلہ ہوا اور معاملے کے حوالے سے جلد پیش رفت کا بھی امکان ہے. بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی اور آئی سی سی کے دورے معیار کے باعث پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا ہوا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ نہ ہونے سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو بھاری مالی نقصان پہنچ سکتا ہے. جی ناظرین, کھیل کی خبریں جاری ہیں. اب آپ کو واپس لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب. بہت شکریہ سمیع آپ کا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل. ہمیں ہماری ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے. کچھ ہی دیر میں آپ کو جوائن کریں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ کا شکریہ. درست ہر وقت بر وقت